اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 100۔ ان دو فرشتوں کی دعا کی تفسیر کے جو ہر روز برسر بازار اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہر خرچ کرنے والے کو اچھا بدل اور ہر بخیل کو تباہی عطا فرما، اور اس کا بیان کہ ہر خرچ کرنے والا اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، نہ کہ خواہشات میں اڑانے والا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے ہمیشہ دو فرشتے عمدہ منادی کرتے ہیں کہ اے خدایا، دنیا میں بخیلوں کو سوائے تباہی در تباہی کے کچھ عطا نہ فرما، اور خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے۔ موقع دیکھ کر خرچ کرنے والے اور نہ کرنے والے اچھے ہوتے ہیں۔ جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ان پر اثر ہو جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر خرچ نہ کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کا مال اس کے حکم کے بغیر خرچ نہ کرو تاکہ تم لاتعداد خزانے پاؤ اور کافروں میں شمار نہ ہو، کیونکہ وہ اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آنے کے لیے بدر میں اللہ تعالیٰ کا حکم کسی پہنچے ہوئے سے معلوم کر لے، کیونکہ ہر دل خدا کے حکم کو معلوم نہیں کر سکتا۔ غلط راستے پر خرچ کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان کی فضول خرچیاں ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ جلد اول، حکایت نمبر 101۔ عرب کے سرداروں کا قبولیت کی امید پر قربانی کرنا۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کے سرداروں کی لڑائی میں قربانی قبولیت کی امید پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن خوف سے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ اگر چنار کے پتے جھڑ جائیں تو خدا اس کو نئے پتے عطا کرتا ہے۔ اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی۔ جو کھیت بوتا ہے اس کا ڈھیر خالی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کھیتی میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور جس نے ڈھیر میں رہنے دیا اور بخل کیا تو گن اور چوہے تو اپنا کام دکھا ہی دیں گے۔ یہ جہاں عدم ہے، اصل مقصد کی تلاش کر۔ اسی طرح تیرا جسم صفر ہے، اس میں معنی کی تلاش کر۔ اپنی کھاری اور کڑوی جان تو تلوار کے سامنے کر دے، اور میٹھے دریا جیسی جان خرید لے۔ جلد اول، حکایت نمبر 102۔ اس خلیفہ کا قصہ جو سخاوت میں حاتم طائی سے بڑا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں ایک خلیفہ ہوا ہے جو حاتم طائی سے بھی بڑھ کر سخی تھا۔ اس کی بخشش کی وجہ سے سمندر اور کانیں خالی ہو گئیں۔ وہ دنیا میں وہاب اللہ تعالیٰ کا مظہر تھا۔ اس کا دروازہ حاجت مندوں کا قبلہ تھا۔ عجم، روم، ترک، عرب سب اس کی عطا سے تعجب میں تھے۔ وہ ایسا بے حیا تھا کہ اس کی وجہ سے عرب و عجم میں جان پڑ گئی۔ جلد اول، حکایت نمبر 103۔ اس فقیر بدو کا قصہ جس کی بیوی اس سے فقر اور افلاس کے بارے میں جھگڑتی تھی۔ ایک رات بدو عورت نے شوہر سے کہا، ساری دنیا خوش ہے لیکن ہم محتاجی کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، نہ اوڑھنے کو۔ ہماری فقیری فقیروں کے لیے بھی باعث ذلت ہے۔ ہم اپنا پرایا ہم سے گریزاں ہیں۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے تو میں رات کو سوتے میں اس کی گدڑی اتار لوں۔ ہم کب تک اس ذلت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ جلد اول، حکایت نمبر 104۔ ضرورت مند مریدوں کا دھوکہ کھانا اور بناوٹی پیروں کو بزرگ سمجھنا، کھرے کو نقل سے نہ پہچاننا اور نہ پانا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ محسنوں کا مہمان بننا چاہیے، ایسے کا نہیں کہ تیری کمائی
कमीना पन से वसूल कर ले। ऐसा पीर रोशनी न देगा, तुझे तारीख बना देगा। जब उसके बातिन में नूर नहीं है तो दूसरे उससे कब रोशनी हासिल करेंगे। एक चुंद हाकसी की आंख का क्या इलाज करेगा, उसका दिल तारीख है और जुबान तेज। उसमें खुदा की ना बू है ना असर। उसने दरवेशों की बाज बातें चुरा ली हैं ताकि गुमान हो कि वो कुछ है। वो बायजीद की ऐब जोई करता है, हालांकि वो खुद अंदर से यजीद है। काफी वक्त चाहिए कि इंसान का असल भेद वाज़े हो कि जिस्म की दीवार के नीचे खजाना है या चींटी और सांप का बिल। कोई मुरीद अगर किसी झूठे मुद्दई का मोतकिद हो जाए कि वो कुछ है और अपने एतकाद से आला मुकाम हासिल कर ले जो उसके पीर को ख्वाब में भी ना दिखाई दे, वो खुद आग और पानी से महफूज रहे लेकिन पीर महफूज ना रह सके। ऐसा नादिर कोई होता है। कभी मुरीद की बातनी रोशनी की वजह से जो कि उसे अपने इखलास की वजह से हासिल हो, पीर के हक में मुफीद साबित हो जाती है। मुरीद अपने नेक इरादे की वजह से एक मुकाम तक पहुंच जाता है, अगरचे जिसको उसने रूह समझा था जिस्म साबित हुआ। उसके लिए ऐसे अहवाल रूनुमा हो जाते हैं कि उसके नाचीज पीर ने सालों में नहीं देखे होते। जैसे किबला की दुरुस्त सिम्मत मालूम ना होने की सूरत में अगर अटकल से नमाज पढ़ ली जाए और किबला रू ना भी हो तो भी नमाज दुरुस्त हो जाती है। हमें अपने रूहानी इफलास को छुपाने और झूठी आबरू के लिए बनावट नहीं करनी चाहिए। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 105। बद्दू का अपनी बीवी को सब्र का हुक्म करना और सब्र की फजीलत बयान करना। शौहर ने बीवी से कहा कि तू आमदनी और पैदावार की कब तक जुस्तजू करती रहेगी। समझदार इंसान कमी बेशी को नहीं देखता, क्योंकि ये दोनों पानी के बहाव की तरह गुजर जाते हैं। चाहे पानी साफ हो या गदला, वो ठहरने वाला नहीं है। इस दुनिया में हजारों जानदार बगैर किसी तरद्दुद के आराम से गुजर कर रहे हैं। फाखिता दरख्त पर खुदा का शुक्र करती है, हालांकि उसने रात का कुछ सामान नहीं किया। बुलबुल कहती है परवरदिगार तुझ पर ही भरोसा है। मच्छर से लेकर हाथी तक अल्लाह का कुनबा है और वो उनकी बेहतर परवरिश करता है। ये सब गम जो हमारे सीनों में पल रहे हैं हमारी हस्ती के गुबार और भगोले हैं। ये जड़ खोदने वाले गम हमारे लिए दरांती की तरह है। इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, सब हमारे विश्वास हैं। हर गमो फिक्र मौत का एक टुकड़ा है। अगर तूने मौत के लिए जुज्व को अपने लिए मीठा बना लिया तो समझ ले कि खुदा कुल को भी मीठा कर देगा। दर्द मौत के कासिद होते हैं, कासिद से मुंह न मोड़। जो शख्स खुशगवार जिंदगी बसर करता है वो तलख मौत मरता है। जो शख्स तन परवरी ही करता है मौत से न बच सकेगा। ऐ औरत, तू मेरा जोड़ा है, जोड़े को यकसा होना चाहिए। जूते और मोजे के जोड़े को देख, दोनों में से अगर एक जूता पैर में तंग हो तो पूरा जोड़ा ही तेरे काम नहीं आता। कभी शेर और भेड़िए का भी जोड़ा हुआ है। मैं कनात की तरफ आता हूं, तू बुराई की तरफ क्यों जाती है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 106। बीवी का शौहर को नसीहत करना कि अपनी बिसात और मुकाम से बढ़कर बात ना कर, क्योंकि जो तुम कहते हो करते नहीं। जो कहते हो अगर सच है तो तुझे तवक्कल का मुकाम हासिल नहीं है। औरत बोली तू इज्जत का शैदाई है, तू तकब्बुर की बात करता है। दुनियादारी और कर्रफर की बातें कब तक। तकब्बुर, दावा, गुरूर और बकवास को दिल से निकाल दे ताकि तू निजात पाए। तकब्बुर बुरा है मगर मुफलसों से और भी बुरा है। तेरा घर मकड़ी के जाले की तरह है और तू दावे करता है। तूने सिर्फ कनात का नाम ही सीखा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कनात तो एक खजाना है, कनात तो गंजे रवा है। तू मुझे बीवी ना कह और शोहर होने का इजहार न कर। मैं इंसाफ की बुनियाद पर बीवी हूं, ना कि मक्कारी की बुनियाद पर। तू अपनी अकल को मेरी अकल से बड़ा समझता है। तूने मुझ कम अकल को क्यों पसंद किया। मंतर पढ़ने वाला दुश्मन की तरह सांप पर मंतर पढ़ता है और सांप उस पर मंतर पढ़ता है, लेकिन मंतर पढ़ने वाला अपने काम के हिर्स की वजह से सांप के मंतर को महसूस नहीं करता।
सांप कहता है कि तू मुझे अल्लाह के नाम पर फांसता है, लेकिन अल्लाह ही का नाम मुझे इंसाफ दिलाएगा। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 107। मर्द का औरत को नसीहत करना कि फ़कीरों को ज़िल्लत से न देख और अल्लाह के मुआमले में कमाल के गुमान से नज़र कर, और अपने इफलास की वजह से फ़क्र और फ़कीरों पर तानाज़नी ना कर। मर्द बोला, ए बीवी, फ़क्र बाइस से फ़ख्र है और किसी में कोई ऐब हो तो उसे नंगा नहीं करना चाहिए। दरवेशी का मामला तेरी समझ से बाला है। दरवेशी दुनियावी कामों से जुदागाना चीज़ है। दरवेशों के लिए अल्लाह की तरफ से हर वक्त बख्शिश है। ये लोग मुल्क व माल के अलावा अल्लाह से बारी रोज़ी पाते हैं। अल्लाह ताला आदिल है और आदिल कमज़ोरों पर जुल्म नहीं करते। मुझे लोगों से बिल्कुल किसी किस्म का लालच नहीं। मेरे दिल में कनात का एक जहान आबाद है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 108। इस बयान में कि हर चीज़ का हरकत करते नजर आना इसलिए है कि वह हर चीज़ को अपने वजूद के हल्के से देखता है, यहाँ तक कि नीले रंग के जरिए सूरज को नीला और सुर्ख के जरिए सुर्ख दिखाता है। जब चमक रंग से साफ हो जाती है और सफ़ेद हो जाती है तो तमाम दूसरी रोशनियों से ज़्यादा सही दिखाने वाली होती है। अबू जहल ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, तू बदसूरत है जो बनी हाशिम में पैदा हुआ। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सच कहता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, ए आफ़ताब के तू खूब रोशन है, तेरे जैसा कोई ना मशरिक में है ना मगरिब में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अजीज़, तूने सच कहा, क्योंकि तू इस नाचीज़ दुनिया से आज़ाद है। हाज़रीन ने पूछा, ए सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुतज़ाद बातें कहने वालों को सच्चा कहा, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक निहायत साफ आईना हूँ। तुर्क और हिंदुस्तानी मुझे वही देखेगा जो वो खुद है। जिसके मुंह के सामने आईना हो वो अच्छे और बुरे को उसमें देखेगा। बद्दू ने बीवी से कहा, तू मुझे लालची कहती है, इस अटकल से बाहर निकल। फ़क्र तो रहमत होता है, जहाँ ये नेमत हो वहाँ लालच कहाँ। तू 2 दिन फ़क्र को आज़मा ले ताकि फ़क्र के ज़रिए तुझे दुगनी गना नजर आए। तो फ़क्र पर सब्र कर ले और अपना रंज भूल जा, क्योंकि फ़क्र में खुदादाद इज्जत है। गौर कर, कनात की वजह से हजारों जानें शहद के समंदर में डूबी हुई हैं। तलखी बर्दाश्त करने वाली हजारों जानें गुलकंद के फूलों में लथपथ हैं। अफसोस कि अगर तेरी जान में इतनी गुंजाइश होती तो मेरी जान से दिल की शरह जाहिर होती। ये बातें जान के पिस्तान में दूध हैं, चूसने वाले के बगैर अच्छी तरह जारी नहीं होती हैं। सुनने वाला अगर प्यासा और तलबगार हो तो वाज कहने वाला मुर्दा भी हो तो बोलने लगता है। जब दरवाजे से कोई नामहरम आता है तो मस्तूरात पर्दे में छुप जाती हैं। अगर कोई महरम आता है, खुदा उसे सलामत रखे, तो मस्तूरात नकाब उठा देती हैं। जिस चीज को हसीन बनाते हैं देखने वाली आंख के लिए बनाते हैं। सारंगी की आवाज का ज़ेरो बम बहरे बेहिस के लिए कब होता है। अल्लाह ने खुशबू को बेकार नहीं बनाया, सूंघने वाले नाक के लिए बनाया है, बेहिस नाक के लिए नहीं। बांसुरी की आवाज अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, शैतान के लिए नहीं। अल्लाह ने जमीन व आसमान को बनाया, दरमियान में नूर व नार को रोशन किया, जमीन को खाक वालों के लिए और आसमान को वहां रहने वालों की जगह बनाया। नीचे रहने वाला इंसान ऊपर रहने वाले का मुखालिफ होता है। अगर मैं दुनिया को मोतियों से भर दूं मगर तेरा हिस्सा उनमें ना हो तो मैं क्या करूं? ऐ बीवी, अगर तू जंग नहीं छोड़ती तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि तंग जूते से तो नंगा पैर बेहतर होता है और खाना जंगी से सफर की तकलीफ बेहतर होती है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 109।
औरत का मर्द की रियायत करना और अपने कहे हुए से तौबा करना। औरत ने मर्द के गुस्से को देखा तो रोने लगी, और ये भी तो उसका एक जाल है। वो बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा सब कुछ तेरा है। अगर फकीरी से मेरा दिल उखड़ा है तो सिर्फ तेरे लिए, तू मेरा जीवन साथी है। मैं नहीं चाहती कि तू बेसरो सामान रहे, मैं तो तुझ पर कुर्बान हो जाना चाहती हूँ। मैं सोने चांदी पर खाक डालती हूँ, मेरा सकून दिल तो तू है। वो वक्त याद कर जब मैं बुत थी, तू पुजारी। मैं अब तेरी मर्जी के बगैर कुछ न करूंगी, तू मेरे साथ फिराक की बात न कर। मैं जानती हूँ मेरा उज़्र खा खुद तेरे अंदर मौजूद है, और वो तेरी बुलंदी ये अखलाक है। उसके रोने और आहोजारी से मर्द का दिल पिघल गया। उसकी बारिश से एक बिजली चमकी और मर्द के दिल पर गिरी। कुरान में इरशाद है, लोगों को मरगूब चीजों यानी बीवियों की दिल बस्तगी भली मालूम होती है। हव्वा को इसीलिए पैदा किया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सुकून हासिल हो। वो जात जिसकी गुफ्तगू से आलम मस्त हो जाता, फरमाती थी कि ऐ हमेरा मुझसे बात कर। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 110। इस हदीस का बयान कि बेशक औरतें अक्लमंदों पर गालिब हैं और जाहिल उन पर गालिब हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अक्लमंदों और साहिब दिलों पर गालिब है, लेकिन बदमजाज और जाहिल औरत पर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि उनमें नरमी, मेहरबानी और मोहब्बत कम होती है, क्योंकि उनकी तबीयत पर हैवानियत गालिब होती है। मोहब्बत और नरमी इंसानी वसफ हैं और गुस्सा और शहवत हैवानी वसफ हैं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 111। मर्द का औरत की दरखास्त को कबूल करना और रोजगार के बारे में उसके एतराज को अल्लाह का इशारा जानना। ये बात मुसल्लम है कि हर घूमने वाले के साथ घुमाने वाला है। मर्द उस गुफ्तगू से ऐसा शर्मिंदा हुआ जैसे जालिम मरते वक्त जुल्म से। दरअसल जब कज़ा आती है तो अक्ल और समझ नहीं रहती, और खुदा के सिवा कज़ा को कोई नहीं जानता। इसीलिए मुत्तकियों के इमाम हजरत अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया कि कज़ा आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं, जब कज़ा गुजर जाती है तो इंसान शर्मिंदगी में अपने आप को काटता है। मर्द बोला, मैं खतावार हूं। दरअसल वजूद व अदम दोनों अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 112। इस बयान में कि मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन दोनों एक ही मशीयत के ताबे हैं, जैसा कि ज़हर और तरियाक और तारीकी और रोशनी, और फिरौन की अल्लाह ताला से खलवत। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन दोनों एक ही हकीकत के ताबे हैं। बज़ाहिर वो रास्ता पर हैं और ये बेराह। मूसा अलैहिस्सलाम दिन में भी रब के सामने रोते थे, और आधी रात को फिरौन भी रोता था कि ऐ खुदा, मेरी गर्दन में ये कैसा तौक है, अगर तौक ना हो तो मैं हूं कौन कहे। तूने मूसा अलैहिस्सलाम को चांद की शक्ल अता की और मुझे स्यारू कर दिया। मेरा सितारा चांद से बेहतर था, लेकिन इसे ग्रहण लग गया तो मैं क्या करूं। हम दोनों एक ही आका के गुलाम हैं, लेकिन तेरा कुल्हाड़ा जंगल में शाख को काट फेंकता है, फिर एक शाख में से दूसरी नई शाख फूटती है और दूसरी को तू बेकार कर देता है। क्या शाख को कुल्हाड़े पर कोई काबू है? नहीं। इस कुदरत के तुफैल जो कि तेरा कुल्हाड़ा है, करम करके इन कच्चियों को सीधा कर दे। फिर वो अपने दिल में कहता, अजीब बात है, रात में मैं रब्बाना कहता हूँ, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जाता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है। खोटा सिक्का खूब चमकदार होता है, लेकिन जब आग के सामने जाता है तो काला हो जाता है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा कल्ब और जिस्म उसके फरमान के ताबे हैं। एक लहजा में उसे गूदा बना देता है और एक लहजा में छिलका। खुदा जब कहे खेती बन जा, मैं सब्ज हो जाऊं, और जब कहे बदसूरत बन जा, मैं जर्द हो जाऊं। कुन के हुक्म के आगे सब मजबूर हैं,
اور وہ حکم مقام لا مقام میں یکساں کار فرما ہے۔ بے رنگ یعنی روح جب رنگ کا پابند ہو گیا تو ایک موسیٰ کا دوسرے موسیٰ سے اختلاف ہو گیا۔ وجود مطلق جب تعین کی قید میں آتا ہے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ جب تو بے رنگی میں آ جائے جو تو رکھتا ہے تو معلوم ہوگا کہ موسیٰ و فرعون باہم صلح رکھتے ہیں۔ تعجب ہے، یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا ہے، بتاؤ رنگ بے رنگ سے مختلف کیوں ہوا؟ تیل کا بیج پانی سے بڑھتا ہے لیکن آخرکار پانی کا مخالف کیوں ہوتا ہے؟ جب پھول کانٹے سے اور کانٹا پھول سے ہے تو ان میں جنگ کیوں ہے؟ یا کہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ کسی مصلحت کی وجہ سے دلالوں کی جنگ کی طرح مصنوعی ہے۔ در حقیقت نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ حیرانی ہے، ہماری ضرورت حقیقی خزانہ یعنی ذات ہے تو خزانے تو ویرانوں میں دبے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے وہ تو تجھے اصل خزانے یعنی استغراق کے حق سے محروم کیے ہوئے ہے۔ وہم و خیال اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ جہاں خزانہ نہیں ہوتا۔ آبادی و عمارت میں ہستی اور اختلاف ہوتا ہے اور فانی کو ہستیوں سے نفرت ہے۔ فنا نفی الذات ہونا ہستی کو رد کر دیتا ہے۔ ایک قوم جلانے والی آگ میں پھولوں کی طرح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک قوم باغ میں رنج اور درد میں ہے۔ اہل اللہ کو اہل دنیا سے نفرت ہوتی ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ دنیا دار ان کو ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 113۔ بدبخت لوگوں کے دو جہان سے محروم رہنے کا سبب، جنہوں نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا۔ ایک فلسفی کا اعتقاد ہے کہ آسمان انڈے کی طرح ہے اور زمین زردی کی طرح۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ زمین آسمان کے درمیان کیسے معلق ہے؟ اس نے جواب دیا، کشش شش جہات کی وجہ سے، جیسے مقناطیس لوہے کے ٹکڑے کو کھینچے رکھتا ہے۔ دوسرے نے کہا، آسمان مصفہ ہے، وہ تاریک زمین کو کب کھینچے گا؟ وہ تو اسے تیز ہواؤں کے درمیان اسے اپنے سے دفع کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے تو اس لیے سرکشی کرتا ہے کہ وہ تیرے وجود سے رنجیدہ ہیں۔ ان کے پاس کہربا ہے، جب وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں تیرے وجود کو تنکے کی طرح اپنا عاشق بنا لیتے ہیں۔ جب وہ کہربا کو چھپا لیتے ہیں تو تیری اطاعت کو سرکشی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح حیوان انسان کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے ہاتھوں میں ہے، حیوان کی طرح فرما بردار۔ قرآن نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا۔ تو جہان کو کل جائے بات پڑھ لے، تو اونٹ ہے اور عقل شتربان کی طرح ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم عقل کی عقل ہیں اور عقلیں اونٹ کی طرح۔ ایک رہنما ہے اور لاکھوں جانے، یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ اولیاء رحمت اللہ علیہم کو شتربان سمجھنا غلط ہے، بلکہ وہ آفتاب ہیں۔ تو وہ آنکھ حاصل کر جو آفتاب کو دیکھ سکے۔ حیرت یہ ہے کہ ذرہ میں سورج پوشیدہ ہے، بکری کے بچے کی کھال میں نر شیر ہے، گھاس کے نیچے چھپا ہوا دریا ہے۔ خبردار، شبہ میں اس گھاس پر پاؤں نہ رکھنا۔ فقراء کے ساتھ حسن زن رکھنے سے کبھی نہ کبھی رہنما مل جاتا ہے۔ ہر پیغمبر دنیا میں تنہا آیا لیکن اس میں 100 جہان چھپے ہوئے تھے۔ بے وقوفوں نے اسے اکیلا اور کمزور سمجھا، لیکن جو شاہ کا مصاحب ہو وہ کب کمزور ہوتا ہے؟ بے وقوفوں نے کہا کہ وہ ایک انسان سے زیادہ نہیں ہے، وہ عاقبت اندیش نہیں ہے۔ پیغمبر انسان کی صورت میں رونما ہوتا ہے لیکن کائنات پر اس کا تصرف ہوتا ہے۔ کامل ہونا انجام پر نظر رکھنا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سن، الفاظ سے گزر جا اور ان میں معنی تلاش کر، کیونکہ ظاہر بھی انجام کو نہیں دیکھتا۔ تو انجام پر نظر کرے گا تو عافیت کو پا لے گا۔